Hello students, good morning. So welcome to the maths class. Now today we are going to learn about the some points, out of which our main point is to find out inverse of a matrix. मैट्रिक्स का इन्वर्स निकालना हमने पिछले चैप्टर मैट्रिसेस में भी सीखा था यूजिंग एलिमेंट्री ऑपरेशंस. But in this chapter we will learn a different method to find out inverse of a matrix, which is more easier than our previous method, that is elementary operation. To learn about the inverse of a matrix by this method, we have to, before that we have to learn some related to the inverse. Those are cofactors and minors and cofactors, and adjoint of the matrix. These three terms, we need these three terms to learn the method of inverse of matrix. Before that we have to learn these 3 points, how to find out minors, cofactors and adjoint. When we learned about these 3 points, then only we can learn to find inverse of a matrix. This is as I told that this is the easier method than our previous method, elementary row operations or column operations. In this method there is some calculation, then the calculation is there, only nothing else. This is very simple method, so we should proceed about this method. So first of all we will learn minors. So these 3 things: number 1, minors; number 2, cofactors; number 3 is adjoint; and number 4 is inverse. ये 4 चीजें आज हम सीखने जा रहे हैं. So we are talking about, first of all we are talking about minors. Let us consider a matrix A. ये हमने एक मैट्रिक्स ले ली. In this matrix we want to learn now some minors, how to find out minors. Now the determinant associated with this matrix is given like this. Now if we want to find out minor, then minor of एलिमेंट 1, जो 1 हमारा एलिमेंट है, इट्स माइनर इज गिवन बाय, इज रिप्रेजेंटेड बाय M11, तो ये फर्स्ट होगा और फर्स्ट कॉलम का एलिमेंट है. M11 इज गिवन बाय, इस 1 से जाने वाले रो और कॉलम को एलिमिनेट करने के बाद जो 4 नंबर्स बचे उन्हें हम डिटरमिनेंट की फॉर्म में लिख देंगे, दैट इज 5, 6, 8, 9. So this will be our
So this will be our minor of 1. Similarly, if we want to find out minor of 2, that will be represented by m, first row second column 1 2, and it's given by 2 से जाने वाली रो और कॉलम को छुपा लिया हमने 4 6 7 9 4 6 7 9। इस तरह से हम इस डिटरमिनेंट के सारे माइनर्स लिख सकते हैं, ये 1 2, ये 1 3, ये 2 1 2 2 2 3 एंड सो ऑन। इस तरह से हम सारे माइनर्स इस के लिख सकते हैं। दैट इज इस 3/3 ऑर्डर के डिटरमिनेंट में टोटल माइनर्स हमारे पास कितने होंगे 9, कॉरेस्पॉन्डिंग टू 1 2 3 एंड ईच एंड एवरी एलिमेंट हमारे पास ये 9 माइनर्स आ जाएंगे। नाउ we are talking about cofactors. How to find out cofactors? Cofactor is given by aij minus 1 की power I plus j and mi into mij. Here mij is minor in ith row and jth कॉलम। सो कि कोई भी कोफैक्टर, जैसे इस 1 का कोफैक्टर की अगर हम बात करें, दैट विल बी ए मल्टीप्लिकेशन ऑफ -1 की पावर i प्लस j इनटू ए माइनर ऑफ इट। फॉर एग्जांपल, आई वांट टू फाइंड आउट ए, लेट अस से 2 2, सेकंड रो एंड सेकंड कॉलम, तो ये वाला मेरा एलिमेंट हुआ, इसका कोफैक्टर हमें निकालना है। तो कोफैक्टर के लिए हम क्या कहेंगे, -1 की पावर i प्लस j यानी 2 प्लस 2, ये 2 ये 2 इंटू एम आई जे यानी इसका माइनर कैसे निकालेंगे, इससे जाने वाली रो और कॉलम को छुपा लेंगे 1 3 7 9, यहाँ लिख देंगे 1 3 7 9 1 3 7 9। तो ये हमारा आ जाएगा 2 प्लस 2 इज 4 एंड -1 की पावर इवन नंबर होता है तो प्लस हो जाता है, प्लस। और डिटरमिनेंट को हम ओपन कैसे करते हैं, पहले लेफ्ट से राइट में मल्टीप्लाई, 1 इंटू 9 -7 3 21, 9 minus 21 is minus का 12. So we have a22, that is cofactor of second row and second column is -12. तो ये हमारे minors and 12. So it is very simple to find out minor and cofactor. Minor में भी हम इसमें multiply कर देंगे, 5 9 जा 45 minus 6 8 जा 48. So we get -3. ये इस तरह से हम सारे माइनर्स, इस डिटरमिनेंट के हम सारे माइनर्स और सारे कोफैक्टर्स निकाल सकते हैं जिसमें। नाउ बेस्ड अपॉन दिस वी विल सॉल्व सम क्वेश्चंस। नाउ टेक ए क्वेश्चन। Two minus 3 5. Question. Consider a determinant 2 minus 3 5 and then 604 604 and then 1 5 minus 7 1 5 minus 7. We have to find out its all the cofactors, and then we have to find out some relations between cofactors and the elements. दो चीजें इसमें हम करेंगे वेरीफाई, दो चीजें हम वेरीफाई करेंगे इसमें। वेरीफाई नंबर 1,
A11, A11, A12, A12, A13, A13, and number 2 A11, A21, A12, A22, A13, A23. ये A11 क्या है? Let us say a determinant. Let us consider this determinant A. In this determinant, this is first row, so 1, 1, 1. This is second row, 2, 2, 2. This is third row, 3, 3, 3. Up column, this is first column, 1, 1, 1. This is second column, 2, 2, 2. This is third column, 3, 3. इस तरह से एक डिटर्मिनेंट के ये सारे एलिमेंट्स हो गए हमारे पास. नाउ लेट अस कंसीडर कोफैक्टर्स. कोई एक मैंने मान लिया एक डिटर्मिनेंट ए जिसमें कि सारे कोफैक्टर्स लिखे. ए कैपिटल ए से हम किसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं? कोफैक्टर्स को. वन वन वन, 2, 2, 2, 3, 3, 3. This is first column, second column, third column. पहले रो लिखते हैं, बाद में कॉलम लिखते हैं. तो यहाँ से ये जो हमारा डिटर्मिनेंट है इसमें हम देख रहे हैं कि ये 1 1, ये भी 1 1, ये 1 2, ये भी 1 2, ये 1 3, ये भी 1 3. यहाँ पर ये सारे एलिमेंट्स तो फर्स्ट रो के हैं, A11, A12, A13 फर्स्ट रो के एलिमेंट्स हैं. फर्स्ट रो. और ये जो कोफैक्टर्स लिखे हैं ये सेकंड रो के हैं. तो हमें ये दो चीजें वेरीफाई करनी है इसके लिए कि ये प्रोडक्ट क्या आती है. लेट अस चेक. So first of all, we have to find out A11, A12 and A13. A11, A12, A13. Then A21, A21, A22, A23. ये 6 ही हम निकालते हैं. 3 और हो सकते हैं. A33, ये वाले 3, 31, 32, 33. तो फिलहाल हम ये 6 निकालते हैं. इसमें दिस विल बी -1 की पावर 1 + 1 = 2 एंड माइनर, इट्स माइनर विल बी, ये छुपा लिए हमने, 0 4 5 -7. सो वी गेट दिस इज प्लस एंड 0 - 5 4 = 20. We get -20. Now A12 similarly -1 की पावर 3 and minor will be 1 2 से जाने वाले छुपा लिए मैंने, यानी इस वाले एलिमेंट फर्स्ट रो में हम बात करें, ये दोनों मैंने छुपा लिए. 6 4 1 -7, 6 4 1 -7. इसे कैलकुलेट कर लो. we get -1, 6 7 जा 42, -4 1 जा 4. पहले मल्टीप्लाई लेफ्ट से राइट की जाती है. इट इज -46 और इस माइनस की वजह से दिस इज +46. सिमिलरली अवर थर्ड वन -1 की पावर 4. अब हमने इस एलिमेंट से जाने वाला कॉलम और रो छुपा लिया. 6 0 1 5, 6 0 1 5. दिस इज प्लस 6 5 = 30 -0. सो वी गेट 30. इसी तरह से ये 3 हम निकालेंगे. 2 + 1 = 3. पावर में हम क्या ले लेंगे? ith रो एंड jth कॉलम. सो I + j. सो वी गेट हियर इज फर्स्ट रो एंड सेकंड कॉलम. सो हियर 2 1 से जाने वाला हमने छुपा लिया. 2 1 कौन सा हुआ हमारा? सेकंड रो फर्स्ट कॉलम है. ये वाला एलिमेंट, इससे जाने वाला रो और कॉलम छुपा लिया. -3 5
5 माइनस 7 माइनस 1 की पावर ऑड नंबर नेगेटिव होता है, 7 3 जा 21 माइनस 25, so it is minus 4, that is plus 4. a22 माइनस 1 की पावर 4, 22 में क्या आएगा हमारा, ये दोनों हमने छुपा लिए, 2 5, दिस इज 5, 2 5 1 माइनस 7, सेकंड और सेकंड कॉलम का हमने छुपा लिया, 2 5 1 माइनस 7, 2 5 1 माइनस 7, वी गेट प्लस माइनस 14 माइनस 5, so we get minus 19. a23 माइनस 1 की पावर 5, इसमें मैंने छुपा लिया ये रो और कॉलम, so 2 माइनस 3 1 5, 2 माइनस 3 1 5, ये मैंने छुपाया 4 से जाने वाला, so 2 माइनस 3 1 5, so we get minus 10 plus 3, so minus 30. ये हमारे 6 के 6 एलिमेंट्स आ गए। अब इसमें हम ये वाली कैलकुलेशन निकालेंगे। क्या आएगी हमारे पास फर्स्ट कॉलम, a11 a1 प्लस a12 a1 a13 a1 is equal to vector value 2, it is minus 1 2, a12 is minus 3 and a12 is 46, a13 5 and a13 is 5. क्या है minus 40, 6 3 is 18, 6 3 4 is 12. इसको कैलकुलेट करेंगे तो कितना आएगा, 40 गया तो प्लस का 1 माइनस का 20. नाउ सेकंड वाली चीज हम निकालें, ये a11 a21 a12 a22, एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज हमारे सामने आएगी इससे निकालने से, a12 a22, ये सारी वैल्यूज कैलकुलेट इसमें पुट कर दें, व्हाट वी गेट, a11 यानी 2 माइनस 3 प्लस 5, अब ये वैल्यूज 4 माइनस 19 और माइनस 13, ये क्या है हमारे पास, 2 4 जा 8 प्लस का 57, it is 57 और माइनस का 65, it comes out to be 0. तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि जब एलिमेंट और कोफैक्टर सेम हो तब तो वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट आ जाएगी, क्योंकि दिस इज व्हाट, दिस इज एक्सपेंशन अलोंग फर्स्ट रो, दिस इज व्हाट, एक्सपेंशन अलोंग फर्स्ट रो, पहला एलिमेंट इनटू उसको छुपा लिया हमने, उसकी मल्टीप्लाई कर दी, दिस इज सेकंड एलिमेंट, दिस इज थर्ड एलिमेंट, सो दिस इज वैल्यू ऑफ द डिटर्मिनेंट एक्चुअली, एंड दिस इज जब हमने यहाँ पर रो तो ली फर्स्ट और कोफैक्टर्स लिए, एलिमेंट्स तो लिए फर्स्ट रो के और कोफैक्टर्स लिए सेकंड रो के, या फिर हम लेते थर्ड रो के, तो ये वैल्यू हमेशा 0 आएगी, चाहे हम यहाँ पर थर्ड रो के लिए एलिमेंट्स ने फर्स्ट रो के, और मींस डिफरेंट रोज के हम एलिमेंट्स और डिफरेंट रोज के हम कोफैक्टर्स अगर लेंगे तो इसकी वैल्यू हमेशा 0 आएगी, और अगर हम सेम रो लेंगे, सेम रो के एलिमेंट और सेम रो के कोफैक्टर्स और एलिमेंट्स की रो सेम लेंगे तो हमारे पास वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट आएगी, और अगर हम डिफरेंट के लेंगे दोनों एलिमेंट्स किसी और रो के, कोफैक्टर्स किसी और रो के, देन वी विल गेट ऑलवेज 0. तो ये दोनों रिजल्ट आपको याद रखने हैं.
means this gives us value of the determinant and this gives us 0. ये आपको हमेशा याद भी रखना है. Just note it down. Now our next topic, adjoint. Note it. ये नोट कर लें. नोट करने के लिए रखने की जरूरत नहीं है. आई थिंक आप पॉज करके तब भी इसको नोट कर सकते हैं. Now adjoint of a, our third point is adjoint. हमने पीछे ट्रांसपोज पढ़ा था. ट्रांसपोज क्या होता है? रो और कॉलम्स को आपस में इंटरचेंज करने से हमें ट्रांसपोज मिलता है किसी भी डिटरमिनेंट का. नाउ एडजॉइंट ऑफ ए मैट्रिक्स. एडजॉइंट क्या है? एडजॉइंट किसी मैट्रिक्स का है, स्क्वायर मैट्रिक्स का. एडजॉइंट इज व्हाट? एडजॉइंट इज ट्रांसपोज ऑफ a matrix of cofactors. किसी भी मैट्रिक्स के कोफैक्टर्स के ट्रांसपोज को हम एडजॉइंट कहते हैं. जैसे फॉर एग्जांपल हमारे पास एक मैट्रिक्स है ए, फर्स्ट रो, सेकेंड रो, थर्ड रो, फर्स्ट कॉलम, सेकेंड कॉलम, थर्ड कॉलम. Then a matrix of all the cofactors. A first row, second row, third row, first column, second column, third column. ये हमारे एलिमेंट्स हैं और ये हमारे कोफैक्टर्स हैं. नाउ this is a matrix of all the cofactors. Then its transpose gives us adjoint of A. शॉर्ट में हम लिखते हैं ऐसे, adjoint of A is given by transpose of this. and इसका ट्रांसपोज क्या होगा? हम रो को कॉलम में लिख देंगे. ये फर्स्ट रो को मैं फर्स्ट कॉलम में लिख रहा हूँ, A11, A12, A13. अब सेकंड रो को A21, A22, A23. थर्ड रो को A31, A32, A33. So this matrix gives us adjoint of A. A means इस मैट्रिक्स का ये adjoint of A है. Adjoint. So adjoint of A क्या है? Is a transpose of matrix of all the cofactors of that matrix. उस मैट्रिक्स के जितने भी cofactors हैं उन सबका ट्रांसपोज जो है की वाली जो मैट्रिक्स है, that matrix is known as adjoint of the matrix. तो ये हमारे पास adjoint आ गया. एक क्वेश्चन ले लेते हैं अब हम 2314. Find
adjoint, find adjoint of A is equal to, इस मैट्रिक्स का हमें एडजॉइंट निकालना है 2 3 1 4, 2 3 1, इसका एडजॉइंट क्या होगा, सारे कोफैक्टर्स मुझे निकालने होंगे, A11 A12 A21 A22। हाउ टू फाइंड आउट कोफैक्टर्स, कोफैक्टर हम कैसे निकालते हैं, -1 की पावर 2 इंटू इससे जाने वाली रो और कॉलम को छुपा लिया तो 4 बचा हमारे पास, सिर्फ सिंपली 4 आ जाएगा, तो दिस विल बी 4। 1 2 में -1 की पावर 3, अब मैंने इस एलिमेंट से 1 2 ये हमारा, इससे छुपा लिया तो क्या बचा 1, सो वी हैव -1, फिर -1 की पावर 3 ये मैंने छुपा लिया तो बचा हमारे पास 3, सो वी गेट -3, -1 की पावर 4 और ये मैंने छुपा लिया तो बचा 2, सो वी हैव 2। सो एडजॉइंट ऑफ A इज इक्वल टू ट्रांसपोज ऑफ ऑल द कोफैक्टर्स, ये सारे कोफैक्टर लिख दिए मैंने, 4 -1 -3 2, ये फर्स्ट रो के हैं दोनों, ये सेकंड रो के हैं 2 2, ये सेकंड रो में लिखे मैंने, और इसका ट्रांसपोज, एडजॉइंट ऑफ ए क्या है, ट्रांसपोज ऑफ द मैट्रिक्स ऑफ द कोफैक्टर्स। ट्रांसपोज कैसे निकालते हैं, इस रो को कॉलम में लिख दूंगा 4 -1, फिर सेकंड रो को -3, तो 2x2 ऑर्डर की हमारे पास ये एडजॉइंट आ गया इस 2x2 ऑर्डर मैट्रिक्स का, इसका एडजॉइंट ये है। तो यहाँ पे हम एक चीज देख सकते हैं, इसका ये एडजॉइंट है तो हम डायरेक्ट शॉर्टकट भी कर सकते हैं कि इन दोनों को तो आपस में इंटरचेंज कर दिया गया है, 2 यहाँ गया और 4 यहाँ गया, 4 इधर आ गया 2 इधर आ गया, इंटरचेंज कर दिया गया, और ये दोनों वहीं के वहीं रहे, बस इनमें माइनस की मल्टीप्लाई हो गई, तो इन दोनों में माइनस की मल्टीप्लाई हुई है, ये माइनस है ये माइनस है, ये दोनों प्लस थे। तो आप डायरेक्ट अगर डायरेक्ट कभी लिखना पड़े जैसे एमसीक्यू वगैरह क्वेश्चन में, तो डायरेक्ट आप क्या करेंगे, किसी 2x2 ऑर्डर 3x3 के लिए नहीं होगा ये रूल, 2x2 ऑर्डर में आप क्या करेंगे, इन दोनों को इंटरचेंज कर दें और इन दोनों में माइनस की मल्टीप्लाई कर दें, वहीं रख के, इन दोनों को इंटरचेंज नहीं करना, तो ये शॉर्टकट हो जाएगा एक तरीके से किसी 2x2 ऑर्डर का एडजॉइंट निकालने का। जस्ट नोट इट। नाउ वी हैव ए थ्योरम। एडजॉइंट पे 2-3 हमारे पास चीजें हैं बहुत इंपॉर्टेंट जो एमसीक्यू में अक्सर पूछ ली जाती हैं एडजॉइंट के ऊपर। थ्योरम नंबर 1, it says that A into adjoint of A is equal to determinant of A into I। ये हम प्रूफ करेंगे इस चीज को कैसे। ए क्या है, एक मैट्रिक्स, फर्स्ट रो सेकेंड रो थर्ड रो, फर्स्ट कॉलम सेकेंड कॉलम थर्ड कॉलम, राइट। ये हमारी एक मैट्रिक्स है, इसका एडजॉइंट क्या होगा, its adjoint will be transpose of all the cofactors, means मैं यहाँ फर्स्ट रो लिखूंगा, यहाँ सेकंड रो लिखूंगा, यहाँ थर्ड रो लिखूंगा, तभी तो ट्रांसपोज होगा। तो फर्स्ट रो पहले तो मैंने ए लिख लिया, फर्स्ट रो सेकंड रो थर्ड रो। अब कॉलम हमारे किस तरीके से होंगे, हमने रो को कॉलम में लिखा है तो कॉलम हमारे ऐसे हो जाएंगे, ये फर्स्ट कॉलम, ये सेकंड कॉलम, ये थर्ड कॉलम। फर्स्ट रो यहाँ आ गई, ये सेकंड रो आ गई, ये थर्ड रो आ गई।
दिस इज अवर ट्रांसपोज. नाउ इन दोनों की मल्टीप्लाई, प्रोडक्ट हम कैसे करते हैं, दो मैट्रिक्स की मल्टीप्लाई कैसे करते हैं, रो बाई कॉलम. तो रो बाई कॉलम, इस रो की इस कॉलम में. तो यहाँ पर हम देख रहे हैं ये फर्स्ट रो के तीनों एलिमेंट है, फर्स्ट रो के तीनों कोफैक्टर्स हैं. तो अभी अभी प्रीवियस हमने जो रिजल्ट देखा वो क्या देखा कि अगर सेम एलिमेंट्स और कोफैक्टर्स सेम रो के होते हैं तो वैल्यू जो आती है वो डिटर्मिनेंट की वैल्यू के इक्वल हो जाती है. सो दिस विल बी इक्वल्स टू डिटर्मिनेंट ऑफ ए. और अगर डिफरेंट रो के होते हैं दोनों एलिमेंट और कोफैक्टर्स दोनों डिफरेंट रो के होते हैं तो वैल्यू जीरो आती है. अब इसकी मल्टीप्लाई, इस रो की मल्टीप्लाई जब मैं इस कॉलम में करूंगा तो डिफरेंट रो के होंगे, सो इट्स विल बी जीरो, इट विल आल्सो बी जीरो. अब सेकंड रो में आते हैं, जब इस रो की मल्टीप्लाई इस कॉलम में करूंगा ये डिफरेंट के हैं, सो इट्स वैल्यू विल बी जीरो. और जब मैं इस रो की मल्टीप्लाई इस सेकंड कॉलम में करूंगा तो ये सेम रो के हैं हमारे पास 2 2 2 2 2 2. सो इसकी वैल्यू इक्वल होगी डिटर्मिनेंट ऑफ ए के, इसकी वैल्यू भी जीरो. और यहाँ पर इसमें थर्ड वाले की जब ये थर्ड वाले से होगी इसकी वैल्यू डिटर्मिनेंट ऑफ ए के इक्वल आएगी. इजंट इट सो? यहाँ पर ये वैल्यू हम मल्टीप्लाई करके इस तरह से मैट्रिक्स आएगी हमारे पास. अब जब किसी मैट्रिक्स में से हम कुछ नंबर कॉमन लेते हैं, कोई स्केलर कॉमन लेते हैं, तो वो मैट्रिक्स के सारे एलिमेंट्स में से कॉमन लिया जाता है. जबकि डिटर्मिनेंट में से अगर हम कुछ कॉमन लेते हैं तो वो किसी एक रो से या किसी एक कॉलम से कॉमन लिया जाता है. तो ये मैट्रिक्स है हमारे पास, मैंने इसमें से डिटर्मिनेंट ऑफ ए कॉमन ले लिया. तो क्या बचेगा हमारे पास अंदर, और ये हमारी आइडेंटिटी मैट्रिक्स है. तो ये हमारा रिजल्ट आ गया, a इंटू एडजॉइंट ऑफ a इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ a इंटू आई. ये रिजल्ट हमें याद रखना है, इसके ऊपर बेस्ड एग्जाम में कई बार 1 मार्क्स का क्वेश्चन अक्सर पूछा जाता है. सो ये हमारा है डिटर्मिनेंट ऑफ a. देन इसी पे बेस्ड अब मैं एक चीज और यहाँ पर कर लेता हूँ हाथ की हाथ. दूसरा रिजल्ट, डिटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइंट ऑफ ए. थ्योरम 2 कह लें इसको आप. थ्योरम 2 सेज अस डिटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइंट ऑफ ए इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ ए की पावर n-1. ये हमारा थ्योरम है. इसको हम कैसे प्रूव करेंगे, इसके लिए हमें इसी रिजल्ट की जरूरत है. तो इस रिजल्ट को हम इस तरह से देखें कि a इंटू एडजॉइंट ऑफ a इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ a इंटू आई. डिटर्मिनेंट ऑफ a इंटू आई को मैंने इस तरह से लिख दिया, इस मैट्रिक्स को. a इंटू एडजॉइंट ऑफ a इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ a इंटू आई होता है. डिटर्मिनेंट ऑफ a आई की में मैंने डिटर्मिनेंट ऑफ a के अंदर मल्टीप्लाई कर दी. तो यही आएगा हमारे पास. इस रिजल्ट को हम यूज कर रहे हैं. और एक और हमारे पास थ्योरम है, थ्योरम नंबर 3, उसको मैं अलग से लिख देता हूँ. डिटर्मिनेंट ऑफ प्रोडक्ट ऑफ टू मैट्रिसेस will be equals to determinant of A into determinant of B. Here it is necessary that A and B, determinant of A and B should not be equals to 0. तो ये भी यहाँ पर रिजल्ट है हमारे पास. अब मैंने इसमें दोनों साइड का डिटर्मिनेंट ले लिया. सो डिटर्मिनेंट ऑफ A into adjoint of A, taking determinant of both sides. इस मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट क्या बन जाएगा हमारे पास, दोनों साइड का मैंने डिटरमिनेंट ले लिया. तो ये जो मैट्रिक्स थी डिटरमिनेंट में कन्वर्ट हो गई. दोनों तरफ का मैंने डिटरमिनेंट इक्वल ले लिया. नाउ अब इसमें से यहाँ से ये डिटरमिनेंट और डिटरमिनेंट से जब हम कोई नंबर कॉमन लेते हैं तो वो किसी एक रो से कॉमन लिया जाता है. तो मैंने फर्स्ट रो से डिटरमिनेंट ऑफ ए कॉमन लिया. और यहाँ पर दो मैट्रिक्स की प्रोडक्ट का डिटर्मिनेंट है तो दोनों अलग अलग हो जाएंगे. दिस विल बी डिटर्मिनेंट ऑफ ए इनटू डिटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइंट ऑफ
ए इज इक्वल टू, यहाँ से मैंने डिटर्मिनेंट ऑफ ए फर्स्ट रो से कॉमन लिया, एक बार सेकंड रो से लिया, एक बार थर्ड रो से लिया, तो 3 बार कॉमन लिया मैंने, और अंदर मेरे पास क्या बचा, डिटर्मिनेंट ऑफ 1 0 0 0 1 0 0 0 डिटर्मिनेंट है ये। सो दिस इज इक्वल्स टू डिटर्मिनेंट, इस आइडेंटिटी इसको डिटर्मिनेंट को जब हम एक्सपेंड करेंगे तो इसकी वैल्यू 1 आएगी। सो वी राइट इट 1, और 1 लिखने की यहाँ पर जरूरत नहीं है हमें। इस डिटर्मिनेंट से मैंने डिवाइड कर दिया, पावर 2 बचेगा। तो यहाँ पर जब ये मैट्रिक्स ए 3/3 ऑर्डर का था, तब तो हमारे पास यहाँ पर डिटर्मिनेंट ऑफ ए की पावर 2 आया। तो अगर हम जनरल में बात करें, अगर ये जो मैट्रिक्स है हमारा ए मैट्रिक्स अगर एन ऑर्डर का है, तो यहाँ पर n-1 आएगा। इसको जनरलाइज कर दिया हमने, तो ये रिजल्ट आपको याद रखना है कि यहाँ पर एक पावर कम आएगी, n जो भी ऑर्डर ए का होगा उससे एक कम आएगा यहाँ पर n-1। क्या, एडजॉइंट ऑफ ए का डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ ए की पावर n-1। अगर 3/3 ऑर्डर का है तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए की पावर 2 आएगा, अगर 2/2 ऑर्डर का है तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए की पावर 1 आएगा, 4/4 ऑर्डर में यहाँ 3 आएगा, एंड सो ऑन। क्लियर इट इज? Now our next point is inverse of a matrix. इसके लिए भी हम यही यूज करेंगे। ये रिजल्ट यूज करेंगे, a इंटू एडजॉइंट ऑफ a इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ a इंटू आई। मैंने इसमें a इनवर्स से दोनों साइड प्री मल्टीप्लाई कर दिया, डिटर्मिनेंट ऑफ ए कांस्टेंट है, इसको तो मैं बाहर लिख सकता हूँ, a इंटू आई। नाउ a इनवर्स इंटू a, ये आई हो गया हमारा, जब हम आइडेंटिटी मैट्रिक्स की किसी मैट्रिक्स में मल्टीप्लाई करते हैं तो वही मैट्रिक्स बचती है हमारे पास, और आई की मल्टीप्लाई जब मैं किसी मैट्रिक्स में करूंगा तो वही मैट्रिक्स आएगी हमारे पास। सो वी हैव ये डिटर्मिनेंट ऑफ ए में उधर ले गया, ये तो नंबर है, नंबर को हम इस तरह से उधर भेज सकते हैं। तो डिटर्मिनेंट क्या है, डिटर्मिनेंट इज सिंपली ए नंबर, नंबर को हमने इसके डिवाइड में भेज दिया। सो एडजॉइंट ऑफ ए डिवाइड बाय डिटर्मिनेंट ऑफ ए। सो ए इनवर्स कैन बी फाइंड आउट। ए के इनवर्स हमने निकाला था एलिमेंट्री ऑपरेशन से, अब ए के इनवर्स हम निकाल सकते हैं एडजॉइंट ऑफ ए डिवाइड बाय डिटर्मिनेंट ऑफ ए। हियर इट इज नेसेसरी दैट डिटर्मिनेंट ऑफ ए should not be equals to 0, and if determinant of a is equal to 0, then a is called singular। तो ये इस मेथड से हम इनवर्स तभी निकाल सकते हैं जबकि a नॉन सिंगुलर हो, मींस डिटर्मिनेंट ऑफ a की वैल्यू 0 के इक्वल ना हो, देन वी कैन फाइंड आउट a इनवर्स बाय दिस वे। तो यहाँ पर एडजॉइंट ऑफ a निकालना हमने सीखा अभी, इट इज एडजॉइंट ऑफ a इज ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स ऑफ ऑल द कोफैक्टर्स, एंड डिटर्मिनेंट ऑफ a तो निकालना हम जानते हैं। तो ये दोनों वैल्यू निकाल के डिवाइड कर देंगे तो हमारे पास a इनवर्स आ जाएगा। दिस मेथड इज मच मोर इजियर देन आवर प्रीवियस मेथड बाय एलिमेंट्री ऑपरेशंस। नाउ एक एग्जांपल ले लेते हैं, हम एक क्वेश्चन ले लेते हैं। Just note it down.
133 क्वेश्चन हम ले रहे हैं, लेट से a इज इक्वल टू 133 143 143 134, then find its a inverse. Find its a inverse. इसका हमें a inverse निकालना है। तो a inverse निकालने के लिए हम वही फार्मूला यूज करेंगे, एडजेंट ऑफ a डिवाइड बाय डिटर्मिनेंट ऑफ a। तो फर्स्ट ऑफ ऑल सारे कोफैक्टर्स हम निकालेंगे इसमें, a11 a12 a13 a21 a22 a23 a33 31 a32 a33। a11 क्या होगा हमारे पास, 1 से जाने वाला हमने छुपा लिया, 16 माइनस 9, सो वी गेट, और बाहर प्लस आएगा क्योंकि -1 की पावर 1 + 1, 16 माइनस 9 इज 7, 16 माइनस 9 इज 7। नाउ a12 बाहर माइनस का साइन आएगा, ये मैंने छुपा लिए दोनों, 1 2 इस 3 से जाने वाले दोनों मैंने छुपा लिए। और यहाँ पर हमारे पास, और साथ ही साथ हम यहाँ पर कोफैक्टर्स सारे लिख रहे हैं। सो कोफैक्टर्स लिखने के लिए हमें क्या आएगा हमारे पास, यहाँ से दोनों हमने छुपा लिए, तो 4 माइनस 3 दैट इज -1। अब यहाँ पर प्लस 1 + 3 क्योंकि 4 है, -1 की पावर 4 प्लस होता है। अब ये मैंने छुपा लिए, सो 3 माइनस 4, सो वी हैव -1। अब यहाँ पर -2 + 1 3 माइनस सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम ये मैंने छुपा लिया, 12 माइनस 9, 12 माइनस 9 इज 3, 2 2 ये मैंने छुपा लिया, तो 4 माइनस 3, और यहाँ प्लस आएगा, सो 1, यहाँ माइनस, अल्टरनेटिंग पोजीशंस पे प्लस माइनस प्लस, फिर माइनस प्लस माइनस, अल्टरनेटिंग पोजीशंस पे। नाउ 2 3 ये मैंने छुपा लिया, 3 माइनस 3 इज 0, फिर a31 की हम बात कर रहे हैं यहाँ पर, 9 माइनस 12 -3, फिर a32 ये वाला मैंने छुपा लिया, 3 माइनस 3 इज 0, 3 2 ये वाला एलिमेंट है हमारा, 3 2 थर्ड रो सेकंड कॉलम। तो यहाँ पर ये मैंने छुपा लिया, सो 3 माइनस 3। नाउ 3 3 इज प्लस, ये मैंने छुपा लिया, 4 माइनस 3 इज 1। ये हमारे सारे कोफैक्टर्स आ गए। नाउ एडजेंट ऑफ ए इज गिवन बाय ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स ऑफ ऑल द कोफैक्टर्स का ट्रांसपोज। ये सारे कोफैक्टर्स, ये फर्स्ट रो में लिखूंगा मैं, 7 -1 -1 -3 1 0 -1 -3 1 0 -3 0 1। अब इसका ट्रांसपोज मीन्स रो को हम कॉलम में लिख देंगे। पहली रो को मैंने कॉलम में लिखा, 7 -1 -1 -3 1 0 -3 0 1। ये हमारा एडजेंट ऑफ ए है। अब डिटर्मिनेंट ऑफ ए की वैल्यू, डिटर्मिनेंट की वैल्यू हम कैसे एक्सपेंड कर देंगे अलोंग R1 में एक्सपेंड करूंगा तो मेरे पास a11 इंटू a11 ये तीनों कोफैक्टर्स होंगे। सो 1 इंटू ये, 3 इंटू ये और 3 इंटू ये, 1 इंटू 7 प्लस 3 इंटू -1 प्लस 3 इंटू -1। ये तीनों कोफैक्टर्स ले लिए मैंने और पहली रो के एलिमेंट्स ले लिए 1 3 3। ये डिटरमिनेंट की वैल्यू हो जाएगी 7 -3 that is 1. So A inverse will be given by adjoint of A divided by determinant of A. Adjoint of A क्या निकाला हमने, 7 -3 -3
डिवाइडेड बाय 1, 1/1 ही होता है, तो यही हमारा इनवर्स है। इस मैट्रिक्स का इनवर्स ये हमारे पास है। जस्ट नोट इट डाउन। अब आपको अपना होमवर्क असाइनमेंट एक्सरसाइज हमने 4.2 तक कल कर लिया था। थ्री तक हमने कल कर लिया था, तो 4.4 और 4.5 आज आपका होमवर्क असाइनमेंट है 4.4 एंड 4.5। छोटी छोटी एक्सरसाइज है, ये दोनों एक्सरसाइज आज आपको कंप्लीट करनी है। एक क्वेश्चन और हम करेंगे जो एक्सरसाइज 4.5 में जिस टाइप के क्वेश्चंस हैं उसके लिए। क्वेश्चन हम ले रहे हैं, इफ a is equal to 2 3 1 2, a is equal to 2 3 1 2, then verify a square minus 4a, verify a square minus 4a plus I is equal to O, and then find, using this find a inverse। इस रिलेशन का यूज करके a इनवर्स हमें निकालना है। तो पहले मुझे a स्क्वायर चाहिए। a स्क्वायर क्या होगा, a इंटू ए, मल्टीप्लाई रो बाई कॉलम, इस रो की इस कॉलम में 4 + 3 7, इस रो की इस कॉलम में 6 + 6 12, इस रो की इस कॉलम में। अब सेकंड रो में आते हैं, सेकंड रो की फर्स्ट कॉलम में 2 + 2 4, अब सेकंड रो की सेकंड कॉलम में 3 + 4 7। ये हमारा है a स्क्वायर। नाउ a स्क्वायर माइनस 4a प्लस I इज इक्वल टू 7 12 4 7 माइनस 4a, 4a का मतलब इसमें 4 की मल्टीप्लाई 8 + 12 4 and 8 प्लस I मीन्स 1/1 ऑर्डर का आइडेंटिटी मैट्रिक्स इज इक्वल टू, अब 7 - 8 + 1 दैट इज 0, 12 - 12 0, ये भी 0 और ये भी 0, सो वी गेट O। तो ये हमारा वेरीफाई हो गया। नाउ इसका यूज करके हमें निकालना है A इनवर्स यूजिंग दिस, इसको यूज करके हमें A इनवर्स निकालना है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, फर्स्ट ऑफ ऑल a स्क्वायर माइनस 4a इज इक्वल टू -I। अब इसमें मैंने A इनवर्स से प्री मल्टीप्लाई कर दिया, सो A इनवर्स, और a स्क्वायर को मैंने लिख लिया a इंटू ए माइनस 4a इनवर्स इंटू a इज इक्वल टू -a इनवर्स इंटू I। a इनवर्स से मैंने प्री मल्टीप्लाई कर लिया, तो a इनवर्स इंटू a मिलके I इंटू a इज a इनवर्स a इंटू I, सो 4I इज इक्वल टू -a इनवर्स। I की मल्टीप्लाई जिस भी हम मैट्रिक्स में करते हैं तो वही मैट्रिक्स आ जाती है हमारे पास, -a इनवर्स। अब a की वैल्यू मुझे पता है 2 3 1 2 माइनस 4I, I आइडेंटिटी मैट्रिक्स ये है, इसमें 4 की मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 0 0 4 इज इक्वल टू -a इनवर्स। माइनस कर दो दोनों मैट्रिक्स को, -2 - 4 इज -2 3 1 -2, और ये जो माइनस था ये मैंने इधर भेज दिया। इस माइनस की मल्टीप्लाई मैट्रिक्स में जब हम मल्टीप्लाई करते हैं
तो मल्टीप्लाई हर एक एलिमेंट में होती है, सो इट विल बी +2 -3 -1 +2। तो ये हमारा इन्वर्स आ जाएगा, इस मैट्रिक्स का इन्वर्स इस मेथड से भी आ जाएगा। इसमें हम क्या देख रहे हैं, इन दोनों को आपस में इंटरचेंज कर दो और इन दोनों में माइनस की मल्टीप्लाई कर दो, तो हमारे पास ये इन्वर्स आ जाती है 2/2। ये हमने पीछे सीखा था। तो इस तरह से हम ये ए इन्वर्स निकाल दिया हमने इन दिस वे। सो आपका होमवर्क असाइनमेंट अब क्या है, एक्सरसाइज 4.4 और एक्सरसाइज 4.5। सो आई होप आप ये एक्सरसाइज ये अपना होमवर्क पूरा कर लेंगे। हर टाइप का क्वेश्चन मैंने डाल दिया है इसमें। आई थिंक कि आपको क्वेश्चंस में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। एक आधी प्रॉब्लम कोई आ सकती है तो वो आप रखें अपने पास, और जब भी मौका मिलेगा वो पूछ लेंगे आप। क्लास स्कूल ओपनिंग में स्कूल में भी पूछ सकते हैं, अदरवाइज मुझे मैसेज करके पूछ सकते हैं। तो ये आप अपना होमवर्क पूरा कर लेंगे। ओके बाय, सी यू टुमारो।